اگر شوہر غریب ہو اور بیوی صاحب مال ہو تو کیا وہ شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے تاکہ شوہر گھر کا خرچ نکال سکے، یا اس کا قرض ادا کرنے کے لیے اسے زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی، کیونکہ شوہر کو دینا اپنے آپ ہی کو دینا ہے، اور شوہر کا بیوی کو زکوٰۃ دینا اپنے آپ ہی کو دینا ہے، اس لیے میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ اپنے ہی ساتھ تعاون کہلائے گا۔ بیوی اپنے خاوند کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، ہاں دے سکتی ہے، لیکن خاوند بیوی کو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ بیوی کا خرچہ تو اس کے ذمہ واجب ہے، لیکن بیوی کے ذمہ تو خاوند کا خرچہ نہیں ہے نا۔ اگر خاوند غریب ہے تو دے اس کو زکوٰۃ، لیکن اچھی بیوی ہے کہ خاوند کو زکوٰۃ دینا چاہتی ہے، ویسے بیوی شوہر کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوہر کی ذمہ داری بیوی ہے، بیوی کی ذمہ داری شوہر نہیں ہے، لہٰذا چونکہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے پھر بھی وہ دینا چاہے تو دے سکتے۔ اپنی بیوی کو زکوٰۃ دو گے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اگر بیوی کو دینے سے زکوٰۃ ادا ہو جاتی تو روزہ تو چھوٹ سکتا تھا، زکوٰۃ کبھی نہ چھوٹتی۔ گھر کا مال گھر ہی میں آئے تو ادا کیا ہوا؟ اس پاکٹ سے نکال کر میں نکالوں یہ 5000 زکوٰۃ ہے اور اس پاکٹ میں رکھ دوں تو میرے ہی پاس ہوئے، گھر کا مال گھر ہی میں۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ۔ اس کے استقبال کے لیے ہم نے مائنڈ سیٹ کر لیا ہے، کچھ بھی ہو جائے روزہ رکھیں گے ضرور، کیونکہ اس میں بھرا ہوا ہے نور، یہ بے حیائیوں سے کرے گا دور، مزہ تو جب ہے کہ اللہ کر لے منظور۔ ہم روزہ رکھیں گے کیونکہ روزے میں اکنامیکل بینیفٹ بھی ہے، اسی مہینے میں لوگ زیادہ تر زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ یہ کیوں جوائنٹ کیا گیا جبکہ یہ جوائنٹ نہیں ہے؟ رمضان ایک الگ فرض ہے اور وہ رمضان کے مہینے میں ہی فرض ہے، باقی مہینوں میں رکھ سکتے ہو، فرض نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ جو ہے جنرلی اسلامک لا کے حساب سے چیز جویلری پہ، گولڈ پہ، سلور پہ، کرنسی پہ پورا سال گزر جائے اور وہ ہلے نہیں، یعنی استعمال میں نہ آئے، اس پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ تو ایسا تو ہے نہیں کہ آپ کی شاپنگ رمضان میں ہوتی ہے تو سال بھی رمضان میں پورا ہو۔ اگر آپ نے شاپنگ رجب میں کیا ہے تو اگلے رجب میں سال پورا ہوگا اور زکوٰۃ رجب میں دینی ہوگی۔ لیکن مسلمانوں نے ایک عادت بنا لی ہے کہ وہ رمضان شریف میں دیتے ہیں، کیونکہ رمضان شریف میں ہر نیکی بڑھ جاتی ہے، تو وہ زکوٰۃ دیں گے تو فرض ادا ہوگا، اپ گریڈ نہیں ہوگا۔ تو لوگ کہتے ہیں رمضان میری جان میری شان، اسلام کی پہچان، رمضان میں اللہ مہربان، تو اسی میں کیا کرو زکوٰۃ کے روپ میں اپنا دان۔ تو یہ زکوٰۃ بھی اسی رمضان میں معروف ہے۔ اور چندہ مانگنے والوں کے لیے آسانی ہے کہ 11 مہینہ وہ زکوٰۃ نہیں مانگتے، ایک ہی مہینے میں جھولا لے کے نکل پڑتے ہیں۔ بمبئی میں جاؤ، دلی میں دیکھو، لاہور میں دیکھو، کراچی میں جو بڑے بڑے شہر ہیں۔ ایک مرتبہ میں بمبئی میں ٹہل رہا تھا، ایک گھر سے دور پیدل جا رہا تھا، تو وہیں گیٹ پر کھڑا تھا ایک آدمی کہ آپ کو بھی چندہ چاہیے؟ اس شکل کے لوگ ہی تو چندہ مانگنے زیادہ نکلتے ہیں، وہ 3 پیس میں تو نہیں ہوتے، کلین شیو نہیں ہوتے۔ تو مجھے بھی وہ سمجھا، پھر میں نے قسم کھا لیا کہ رمضان میں بمبئی کبھی نہیں آؤں گا۔ لیکن یہ روزہ اور یہ زکوٰۃ، یہ رمضان شریف میں ہماری فیلنگ کیوں ہوئی کہ وی مسٹ پے اور زکوٰۃ موسٹلی ان دا رمضان؟ اگر ہمیں شوال میں دینا تھا تو رمضان میں دے دیا تو ایڈوانس پیمنٹ ہے، اور لیٹ ہو گئے تھے تو چلو پیمنٹ ہوا پر ڈیلے، مگر رمضان ملے۔ آئی کین فیس ڈیلے لیکن ملے۔ اسلام سے پہلے دنیا میں چیریٹی نہیں تھی، اسلام سے پہلے دنیا میں جوڈیشری نہیں تھی، اسلام سے پہلے کوئی بھی الیکٹڈ پرسنالٹی نہیں تھی، اسلام سے پہلے کوئی under the constitution, under the Islamic book, under the Holy Quran, under the teachings of Prophet نہیں تھا۔ Might is right, dictatorship, buffer state and dictator.
किंग। इस्लाम आया तो पता है नहीं, जुडिशरी होना, मुद्दई मुद्दालय, सबने उस पूरे सिस्टम को ले लिया। चैरिटी के लिए ज़कात, फितरा, चैरिटी का सिस्टम, ट्रांसपोर्ट, नेवी। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला ने इंट्रोड्यूस नेवी, हजरत उमर इंट्रोड्यूस आर्मी सिस्टम। हुआ क्या, आज जब मैं दुनिया को देखता हूं तो पूरे यूरोप ने आपका सिस्टम ले लिया और कलमा छोड़ दिया। पूरा इस्लाम, सिस्टमेटिक इस्लाम, सोशल इस्लाम, जस्टिस इस्लाम, लीगल इस्लाम सब ले लिया। कहीं भी जाओ, इंग्लैंड, हॉलैंड, बेल्जियम, जर्मनी, आपको सब मिलेगा। उन्होंने कलमा छोड़ दिया। और मुस्लिम मुल्कों ने क्या किया, कलमा ले लिया, सब सिस्टम छोड़ दिया। और सिस्टम ही में बरकत है, इसीलिए यही सिस्टम को फॉलो करने वाले आज सुपर पावर है। अब आइए सिस्टम पे बात करते हैं। उसी में एक रोजा है और एक ज़कात है। ज़कात के बारे में एक बात हमेशा नोट रखें, आपने किसी डिजर्विंग पर्सन को ज़कात दे दिया तो वो मनी ऑफ ज़कात तब तक है जब तक आपके हाथ में है। मैं 1000 पाउंड ज़कात देना चाहता हूं, मैंने अब्दुल मजीद, एक गरीब आदमी था, उसको दिया, लेकिन जब तक मैंने नहीं दिया था वो ज़कात है। जैसे अब्दुल मजीद ने ले लिया, वो ज़कात नहीं, उसकी प्रॉपर्टी है, वो मालिक है। तो हम ज़कात देने वाले हुए, वो ज़कात खाने वाला नहीं हुआ, क्योंकि जो मालिक है उसे खर्च कर रहा है तो ज़कात खोर नहीं है, अपना माल खा रहा है। इसीलिए अगर वो अब्दुल मजीद 1000 पाउंड में से 500 पाउंड मस्जिद को दे दे तो मस्जिद के लिए जायज है, क्योंकि ज़कात वाला नहीं दे रहा है, मालिक दे रहा है। लेकिन ये अपनी मर्जी से करे, सेटिंग मत करना, नो फिक्सिंग। जब क्रिकेट में फिक्सिंग नहीं चलती तो रिलीजियन में फिक्सिंग कैसे चलेगी? फिक्सिंग, हाँ कोई बाहर से समझा दे अब्दुल मजीद को, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। शौकत अली बाबू ने समझा दिया, यार मोदी साहब मिशन को पैसे की जरूरत है, तेरे को अल्लाह ने 5000 ज़कात दिलवाया, तेरे को 1000 चाहिए, 4000 दे दे। ये कोई आइडिया दे सकता है, कंपेल नहीं, प्रेशर नहीं, सेटिंग नहीं, ताकि वो अपनी मर्जी से दे। नंबर 2, ज़कात देने में इस बात का ख्याल रखना जरूरी है, नंबर 1 वो डिजर्विंग पर्सन हो, उस पर ज़कात देना फर्ज ना हो, वो मालदार ना हो। मिलियनर और बिलियनर को ज़कात दोगे तो नहीं चलेगी ज़कात। मैं बता रहा हूं, जिनको ज़कात नहीं दे सकते, अपनी बीवी को ज़कात दोगे, ज़कात अदा नहीं होगी। अगर बीवी को देने से ज़कात अदा हो जाती तो रोजा तो छूट सकता था, ज़कात कभी न छूटती। बीवी दबाव डाल के लेती, गिव मी 10,000 ज़कात, and no any husband can give zakat to his wife. Oh my sweetheart, come on, take 10,000 pounds of zakat and use in your personal expenses. No, अपने बेटे को भी देने से अदा नहीं होगी। तो घर का माल घर ही में आए तो अदा क्या हुआ? इस पॉकेट से निकालकर मैं निकालूं, ये 5000 ज़कात है और इस पॉकेट में रख दूं तो मेरे ही पास हुए, घर का माल घर ही में। एक बात और, आप सादात को ज़कात देना हराम है। ज़कात सिर्फ सादात ही नहीं, रसूल पाक के पूरे परिवार को देना हराम। उनके परिवार का नाम है बनो हाशिम।
फातिमी हो, हसनी हो, हुसैनी हो, अलवी हो, अब्बासी हो, अकीली हो, अलगरज कैसा भी हाशिमी हो, हर हाशिमी पे ज़कात देना आपके लिए हराम है। ये रसूल पाक का परिवार है, इसको ज़कात देना हराम है। मैं सोच रहा था कि जब लोग पावर में आते हैं तो परिवार की फिक्र करते हैं, जब लोग पावर में आते हैं तो अपनी फैमिली की फिक्र करते हैं। भाई पावर में आए तो छोटे भाई को भी पावर में लाया, अब्बा पावर में आए तो पूरी बहू बेटी सबको पार्लियामेंट में पहुंचा दिया। और उसकी सजा भी मिलती है पब्लिक को, परिवारवाद फैमिली फीलिंग्स डेवलप होती है। लेकिन बट नेचुरल, इफ यू आर पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली योर पोजिशन इज साउंड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी योर फैमिली, फैसिलिटीज फैमिली को मिलना चाहिए। ये दुनिया में तन्हा हमारा आपका रसूल है कि पावर में आया तो सबसे पहले अपने खानदान पर बैन लगाया, ज़कात लेना हराम है। मैं उलमाए कराम से पूछना चाहता हूं कि ज़कात एक इबादत है और इबादत में कास्टिज्म नहीं है। फिर रसूल पाक ने क्यों कहा कि सैयदो ज़कात लेना तुम्हारा हराम है और लेके खाना उससे बड़ा हराम है? कौन गारंटी लेता है कि आले रसूल के घर चूल्हा जलता रहेगा? कब गरीबी ने कास्टिज्म देखा है? हर क्लास में गरीबी है, हर समाज में गरीबी है। क्या सैयदों को हल चलाते हुए नहीं देखा गया? क्या सैयदों को टैक्सी ड्राइवर बनते हुए नहीं देखा गया? आखिर जब ये माल अल्लाह के नाम पे निकला है तो ये रसूल आपकी औलाद गरीबी में क्यों नहीं ले सकती? इफ योर जनरेशन लिविंग अंडर द लाइन ऑफ पॉवर्टी, व्हाई ही इज नॉट डिजर्विंग फॉर ज़कात? ये ज़कात कोई हराम माल नहीं है, अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की राह में निकाला है। तो रसूलुल्लाह की औलाद क्यों नहीं? गरीबी उनमें भी है तो क्यों नहीं? भूखे प्यासे वो भी रहे तो क्यों नहीं? खाने को रोटी नहीं है तो क्यों नहीं? जवाब मिलेगा, बहुत अच्छा किया मेरे नबी ने जो अपने खानदान पर ज़कात लेने को मना कर दिया, ताकि कोई दुश्मन इस्लाम रसूल पर यह इल्जाम न लगा सके कि अपने खानदान की परवरिश के लिए इस्लाम चलाया, अपनी फैमिली के इकोनॉमिकल प्रोटेक्शन के लिए इस्लाम चलाया। इसका उल्टा जरूर है कि अगर आप पे ज़कात देना फर्ज है तो मुझ पर भी ज़कात देना फर्ज है। शौकत अली बापू को ज़कात देना आप पे फर्ज है। क्यों हसन अली बापू? ज़कात देना सैयदों पे फर्ज है। अगर साहिब निसाब है, लेना हराम है और देना फर्ज है। अरे बाबा जब ले नहीं सकते तो यही कंसेशन हो सकता, न लो न दो, कुछ तो इक्वलिटी होती। लेकिन जब मालदार सैयद है तो देना पड़ेगा, और फाका मस्त है तो ले नहीं सकता। अब मैं नाम लेके आपसे पूछता हूं, सैयद मोहम्मद हाशिमी पे ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना। शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां पे ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना। आप उलमा नहीं, पब्लिक बोले। मुहद्दिस आज़म पे ज़कात देना हराम है, साहिब निसाब होने की सूरत में देना। सरकार सैयद जमात अली मुहद्दिस अली पूरी पे ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब हो तो देना। सरकार सैयद मेहर अली गोड़ा शरीफ ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना। गरीब नवाज के लिए लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब हो तो देना। गौसे आज़म पर ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब हो तो देना। मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा पर ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में। रसूल पाक पर ज़कात लेना हराम है, लेकिन साहिब निसाब होने की सूरत में देना जी नहीं। इसीलिए तो मैं नीचे से चला। रसूल पाक की अकेली ज़ात है, न ज़कात लेना है न ज़कात देना। ज़कात लेना हराम है वो तो क्लियर है। अब वापस आओ, एक तुम हो, मैं गरीबों की बात कर रहा हूं, जो गरीब सुन्नी है हमारे, हम तो गरीब सुन्नियों को गरीब ही को बहुत प्यार करते हैं। हमारे दादा पीर ने अपना नाम ही गरीब नवाज रखा, तो गरीबी पे अपने को कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है। पॉवर्टी इज माई पावर, अल फक्र फखरी, आई प्राउड
क्योंकि पॉवर्टी में गुनाह कम होते हैं। माल ही नहीं है तो क्लब कैसे जाएगा, माल नहीं है तो पब में क्यों जाएगा, माल नहीं तो कसीनो में क्यों जाएगा। पॉवर्टी ने कितना सेव कर लिया कैरेक्टर को। पॉवर्टी इज माई प्राउड। बहुत बेनिफिट है इसमें, और बेनिफिट को कौन छोड़ता? आप छोड़ने को तैयार हैं? जो काउंसिल से बेनिफिट मिलता, हम जो बेनिफिट छोड़े, गरीबी में हमारा बेनिफिट है। नंबर 2, तो आपकी क्या पोजीशन है? आप गरीब हैं तो लेते हैं, अमीर हैं तो देते हैं। आपका क्या क्लास वाला शरीयत में? ज़कात लेता भी है और देता भी है। दूसरा क्लास सैयदों का है, देते तो हैं लेते नहीं। आप देते भी हैं लेते भी हैं, ये क्लास हुआ लेन देन इक्वल। साहिब नसाब है तो देते हैं और गरीब है तो लेते हैं। और सैयदों का क्लास है, अमीर है तो देते हैं और फकीर हो जाए तभी लेते नहीं। और नबी करीम का कौन सा क्लास बना? न ज़कात लेते हैं न देते हैं। तो क्या मतलब? उम्मते रसूल आले रसूल की तरह नहीं, और आले रसूल भी रसूल की तरह नहीं। ये लेसन हमने ज़कात से लिया है, मौलवी हयात से नहीं। ज़कात ने हमें बताया है, योर क्लास यू कैन गिव यू कैन टेक, बट सैयद कैन गिव कांट टेक, एंड होली प्रॉफिट नेवर गिव और नेवर टेक। अब वजह बताना जरूरी है। कोई बताता है कि रसूल पाक पे नमाज फर्ज थी, रसूल ने नमाज पढ़ी, रोजा फर्ज था, रोजा रखा, हज फर्ज था, हज किया, ज़कात फर्ज नहीं, ज़कात दिया नहीं, कोई बोला आज तक? तो ऐसा सेंटर बनाने से क्या फायदा जो ज़कात की पूरी हकीकत न बताए। इसलिए जरूरत है मुहद्दिस आज़म सेंटर की, जो आपको सारी बात बताए, आपके बच्चों को सारी हिडन रियलिटीज बताए, ग्राउंड रियलिटीज बताए। मैंने बताइए आज तक आपने किसी से सुना कि रसूल पाक पर ज़कात फर्ज नहीं? और नमाज फर्ज है तो आपके ऊपर 5 वक्त की फर्ज है, कितनी? और रसूल पाक पर 6 वक्त की फर्ज है, ताकि नमाजी भी समझ जाए रसूल हमारी तरह नहीं। आपने जो रोजा रखा गया, आपने जो रोजा रखा, उसमें इफ्तारी का टाइम टेबल पहले जानते हैं, कब खाना है, कितना खाना है, हुक्म मौलाना है। 1 बजे 2 बजे यानी 18 घंटा 20 घंटा का रोजा है, फिर नहीं खाना है। पूरा टाइम टेबल मालूम है खाने पीने का। आप इफ्तार करते हो, आप सहरी करते हो, ये आपका रोजा है। मेरे नबी ने वो रोजा रखा जिसमें ना इफ्तार है ना सहरी है। अभी आपको 24 आवर्स के लिए कह दिया जाए तो सांस फूल जाएगी। और मेरे नबी ने कई दिन तक वो रोजा रखा, उस रोजे का नाम है सौमे वैसाल। ऐसा रोजा जो वैसाल के लिए हो, कुर्बत के लिए हो, ना सहरी ना इफ्तार। अब हुजूर खाना पीना छोड़ दिए, तो बगैर खाए पिए फजर भी पढ़ रहे हैं, जोहर भी पढ़ रहे हैं, असर भी पढ़ रहे हैं, मगरिब भी पढ़ा रहे हैं, इशा भी पढ़ा रहे हैं। सहाबा किराम ने देखा आका मौला खाते पीते नहीं, तो इश्क ने जगह बनाई। और कुछ सहाबा बोले हम भी ऐसे ही करेंगे जैसे आका, वो नहीं खाते तो हम भी नहीं खाएंगे, वो नहीं पीते तो हम भी नहीं पिएंगे। अब ये सहाबा का सबसे बड़ा क्लास है उम्मत में, बिगेस्ट क्लास, मैचलेस क्लास। गौसो ख्वाजा अपनी अजमतों, अपने टॉप ग्रेड, दाता लाहौरी हो, ख्वाजा अजमेरी हो या गौसे जीलानी हो, टॉप क्लास टॉप रैंक पर है, मगर किसी सहाबी के बराबर नहीं। अब आइए जो ऐसे बड़े बड़े औलिया अल्लाह जब सहाबा के बराबर नहीं है तो देखना होगा कि ये सहाबा का क्लास क्या कर रहा है। उन्होंने भी रोज़ा रखना शुरू कर दिया, 2-3 दिन तो चला। अब उसके बाद बॉडी में एनर्जी नहीं, ताकत खत्म, कुछ आ नहीं पा रहे हैं, कुछ लड़खड़ाते हुए आए हैं। हुजूर ने पूछा ये जमात में लोग कम क्यों हुए? तो किसी ने बताया सरकार आप नहीं खा रहे हैं ना, आप सौमे वैसाल रख रहे हैं। वो साहबा भी आपकी मोहब्बत में, इश्क में, लव इज ब्लाइंड। लव अपने बारे में कुछ सोचता नहीं, लव फुल ऑफ सेक्रीफाइस। मुकाबला तो आज हो रहा है, वहां तो लव था, मोहब्बत, इश्क, फिनाइयत, टोटल सरेंडर टू होली प्रॉफिट। सारे साहब उन साहबियों को बुलाया, जो पॉइंट की बात है वो मैं आपको बताऊं, टाइम का ख्याल रखना पड़ता है। अय्युकुम मिसली, यू आर फॉलोइंग मी विदाउट माई ऑर्डर।
You are following me without my order. Are you like me? Who is like me? सारे साहबा ने हाथ जोड़ दिया, नहीं सरकार, आपकी तरह तो कोई है ही नहीं, बस हम मोहब्बत में चल पड़े थे। आप तो बेमिसल हैं, आपका तो कोई जवाब नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से क्या कहा? You are not like me. I am not like you. किससे कहा ये बात? रसूल पाक ने ईमान वालों से। और जब मक्के के काफिर सामने आए तो अल्लाह ने कहा महबूब इनको दूसरी बात बोलो जो ये समझ लें, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। काफिरों से कहा है काफिरों मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, आई एम लाइक यू। और साहबा से क्या कहा? आई एम नॉट लाइक यू। तो रसूल ने इंसानों को दो हिस्सों में बांट दिया, डिवीजन। काफिरों का करो वन साइड, ईमान वालों का करो दूसरे साइड। ईमान वालों की तरफ मुंह किया तो कहा अय्युकुम मिस्ली, आई एम नॉट लाइक यू, हु इज लाइक मी। और जब काफिरों की देखा मैं तुम्हारी तरह बशर हूं, तो जिसने जो सुना वही दोहरा रहा है। अब अगर कोई भी बड़ी में कहे रसूल हमारी तरह झगड़ा मत करना, पीस वेरी इंपॉर्टेंट, समझ जाना कि किस जमात से बोल रहा है। रसूल पाक ने जब अलाउ किया है काफिरों से कि मैं तुम्हारी तरह हूं तो उनको कहने दो, और सहाबा से कहा मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, तो हम सहाबा वाले हैं, हम बेमिसाल समझेंगे, लाजवाब समझेंगे, बेनजीर समझेंगे। अब अगर आप अपनी ज़कात अपनी बीवी और बेटे को देंगे, ज़कात अदा होगी। इतनी जनरल नॉलेज तो नौजवानों को भी है। अगर आप अपनी ज़कात गुलाम को देंगे, मुझे समझाना पड़ेगा गुलाम वो नहीं है जो आपके यहाँ जॉब कर रहा है, सर्विस कर रहा है, नौकरी कर रहा है, वो नौकर है, गुलाम नहीं है, एम्प्लॉई है, स्लेव नहीं है। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सुल्तान इस्लाम के हुक्म से अगर राह खुदा में जिहाद हो रहा हो तो उसमें कुछ लोग पकड़ के आए जिन्होंने मुसलमानों को मारना चाहा।